Good morning, dear students. In the previous lecture, we discussed about marketing information system and marketing research. We discussed about how data will be helpful, how marketing information system will be helpful in getting the results and completing the objectives of the company. How we are able to get the information from the market, how we are able to get the information from the clients, how we are able to fulfill their demands. We already discussed about that. Students, it is necessary to get the complete information about the market if you want to survive and develop the things in a proper way. It is necessary to handle the situation of the client in such a way that you will be able to satisfy the needs of the people as per the requirement. When we speak about product life cycle, every product has a life, like us. जैसे हमारा लाइफ होता है वैसे प्रोडक्ट का भी लाइफ होता है. हमारा जैसे एक बचपन के बाद युवा के बाद एक सीनियर person who is working in the company or office somewhere, and then comes the retirement age and the life after retirement. जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ होता है वैसे हर एक प्रोडक्ट का भी लाइफ होता है. When we speak about the life of a product, तो हर एक प्रोडक्ट कुछ स्टेजेस से गुजरता है. हर एक प्रोडक्ट कुछ स्टेजेस से गुजरता है. और वो स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. द फर्स्ट स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. सेकंड स्टेज इज प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज. सेकंड स्टेज इज प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज. And the third stage is product growth stage. Product growth stage. Then comes product maturity stage. Product maturity stage. And then comes product decline stage. Or I can say product retirement stage. मैं फिर से बोलता हूँ. Product development stage. First, product introduction stage. Second, product growth stage. Third, product maturity stage. Fourth, and product decline or retirement stage 5. These are the 5 stages every product has to go through. ये 5 stages हर एक product अपने life में go through करता है. अब इसे कहा जाता है phases of प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग फेज, अलग अलग लेवल जो कंपनी हर एक प्रोडक्ट के लिए ये प्रोसेस से गुजरती है. अब हर कंपनी चाहती है कि अपने प्रोडक्ट का लाइफ हेल्दी रहे, ज्यादा रहे, मैक्सिमम रहे, जल्दी से प्रोडक्ट मार्केट के बाहर ना जाए, प्रोडक्ट मेंटेन रहे, हर एक प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चले, हर एक प्रोडक्ट मेच्योर्ड बन के चले, हर एक प्रोडक्ट अपना हेल्दी लाइफ जिए. क्योंकि जितना प्रोडक्ट हेल्दी और जितना प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना प्रोडक्ट परफेक्ट रहेगा, उतना कंपनी को उस प्रोडक्ट से मिलने वाला प्रॉफिट ज्यादा होगा. जितना प्रोडक्ट स्ट्रॉन्गली हम लोग डील करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट उससे मिलने वाला जो है वो ज्यादा रहेगा, बेहतर रहेगा. ये अपना कंपनी का अल्टीमेट गोल होता है. So product life cycle. हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ रहता है जो अलग अलग फेजेस से गुजरता है. और वो अलग अलग फेजेस कुछ इस तरह है. सबसे पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. नंबर 2 प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज. नंबर 2 प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज. नंबर 4 प्रोडक्ट
maturity stage, and then comes product decline, or we can say retirement stage. So we have to understand here the life of the product. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये, what is PLC, what is product life cycle, question mark. What are the phases of product life cycle? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से phases है? What is product life cycle and what are the phases of product life cycle? These are the questions which will be asked in the university exams. So when we speak about the product life cycle, it is a process of every product. Every product goes through such kind of a process. Simply, it is compared with the life of a human being, like childhood, youth, and then growing up, and all further things. So basically, what we are going to study in this chapter is product development stages. That is what the first stage, and the remaining 4 stages, that is product life cycle. And the remaining 4 stages are introduction, growth, maturity, and retirement or decline stage. This is what the agenda of the today's session. First, we will discuss about the product का development कैसे होता है. एक simple सा question है मेरा. When we speak about marketing, जब हमने marketing start किया तो तभी मैंने आपको बताया था. Marketing is a vast concept. It starts from the idea generation. Then, according to idea, designing the product. According to design, developing the product. According to development, production of the product. According to the production, promotion of the product. According to the promotion, public may create a demand for the product. According to the demand, distribution of the product. After distribution, after sales services of the product, consumption of the product. After consumption, feedback about the product. After, according to the feedback, new idea generation. Again, the things will continue. So this is what the life of a product in the journey of a marketing. Marketing के पूरे प्रोसेस में हमने देखा हर जगह पे प्रोडक्ट चल रहा है. So कोई भी प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट तब बनता है, कोई भी प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट तब बनता है जब यहाँ पे उसके लिए एक आइडिया जनरेट होता है. Until and unless you are not able to generate an idea, until and unless you are not able to generate a proper innovative idea, you will not be able to create a better product. So simple logic is that. So product development stages. We have to understand about the product development stages first. Then we will go with the introduction, growth, maturity, and retirement. Okay. So PLC. The first stage is product development stage. Be careful in this slide. When we speak about the product development, how product development takes place, how product is developed, that we need to understand properly. The most important part is, as I told you, it is necessary to generate an idea. It is necessary to generate an idea. Simple सा क्वेश्चन है मेरा. हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? जो प्रोडक्ट हमें बनाने को आता है वो प्रोडक्ट हमें बनाना है, या हमारे क्लाइंट को जो चाहिए वो हमें बनाना है? हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे कस्टमर को चाहिए. हमें वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो हमको आता है. सिंपल लॉजिक. It is necessary to check what our customer wants rather than produce what we know. That's right. First, you have to understand. आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? You have to generate an idea. This is called as an idea generation. When we speak about idea generation, you have to understand the two things. What is needed in the market? What is needed in the market? Market में क्या चाहिए? And
what do we make? How do we make this product better? How do we make this product better? There are two things. What is needed in the market? Market में क्या चाहिए? And how do we make this product better? और इस product को और भी बेहतर हम कैसे बना सकते हैं? These are the two things which we need to understand and answer in this scenario. क्योंकि जब तक आप लोगों को ये दो चीज नहीं समझेगी तब तक आइडिया नहीं आएगी. Idea means what? You will not able to understand exactly what these people want and how these people want in a different scenario. Until and unless you will not go to the market, until and unless you don't survey, you will not know what is needed in the market. And you will also don't know how do you make this product better. This product को और भी बेहतर हम कैसे बना सकते हैं. The first stage is idea generation. You have to develop an idea. Once you receive some ideas may be one, idea may be 2, 3, 4, and obviously you must have multiple ideas. Don't depend on only one ideas. You have certain ideas. Now the stage is come, you have to screen the ideas. Screening of ideas. What it means? You have to check every idea and you have to answer two questions again. Do consumer want this product? क्या seriously consumer को ये product चाहिए? Do really consumer wants this product? तो कंज्यूमर को सीरियसली ये प्रोडक्ट चाहिए. नेक्स्ट, what competition exists out in market? ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले और कितने कंपनीज है, यानी कि how big competition we are having for the same product. आइडिया जनरेशन कर दिया. Now you have to think about the screening of ideas, checking of ideas, understanding of ideas. In this you have to answer, क्या सच में कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए? Do really consumer want this product? And what competition exists out in market? कौन सी और कंपटीशन मार्केट में इससे रिलेटेड है और कितने लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं. सो हमें क्या करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को लेना चाहिए, कैसे हमें सर्टिफाई करना चाहिए. आइडिया का पूरा स्क्रीनिंग करना चाहिए, जिसे हम स्क्रूटिनी करते हैं. वैसे वी नीड टू डू द स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया. देन कम्स कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. आइडिया जनरेशन, idea screening, then comes the concept development. Creating a prototype so consumer can see, feel, etc. तो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को ध्यान में रख के हमें एक नया प्रोडक्ट वैसे ही क्रिएट करना पड़ेगा, डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा. We have to understand the kind of a prototype of a product, same kind of a product we need to develop. We have to create a product which will give a kind of a simple. For example, आप लोग जब भी मोबाइल फोन लेने चाहते हो तो आप एक डेमो पीस लेते हैं. एक घर जब डेवलप होता है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जब बिल्डिंग बनाती है तो उसका बिल्डिंग का मॉडल बना के रखती है, घर का सैंपल बना के रखती है. तो क्यों बना के रखती है? क्योंकि वो कस्टमर को डायरेक्टली एक फीडबैक देता है, वो कस्टमर को डायरेक्टली एक काइंड ऑफ सपोर्ट देता है, उसको एक आइडिया देता है कि ये एग्जैक्टली क्या है. सो क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप सो कंज्यूमर कैन सी, फील एक्सेट्रा. कस्टमर उसको पूरा तरीके से समझ सकता है कि एग्जैक्टली मैं क्या लेने वाला हूँ, कि कौन सा प्रोडक्ट मैं लेने जा रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट मेरे को फायदे में होने वाला है या नहीं. How this product is helpful, how this product is going to support me, how this product is going to benefit me. ये सारी चीजें इससे हम लोग को समझ में आती है. It will be getting clear with the help of this support, this kind of a support. So ये अपने को यहाँ पे क्लियर करना जरूरी होता है. So that is what we can call it as a concept development. दोस्तों ध्यान से समझना. Idea is generated.
क्या प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए पहले आइडिया जनरेट करना है, देन आइडिया जितने भी जनरेट हुए उसका स्क्रीनिंग करो, चेकिंग करो कि कौन सा आइडिया मेरे लिए वायबल है, कौन सा आइडिया मेरे लिए प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसा है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ये जो आइडिया हमने डेवलप किया है, जो भी स्क्रीन किया है, जो आइडिया को हमको ऐसा लगता है कि आइडिया परफेक्ट है, तो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप, क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप सो कंज्यूमर कैन सी, फील एंड अंडरस्टैंड कि वो लोग आखिर में खरीदने वाले क्या है। अब ये आपको समझ में आ गया कि आपका आइडिया क्या है, आपने स्क्रूटिनी कर लिया, आपने चेकिंग कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, देन यू हैव टू कम अप विद द मार्केट स्ट्रेटेजी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्या प्लानिंग करोगे, कैसा स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे आप मार्केट तक पहुंचोगे, हाउ यू विल रीच टू द मार्केट स्ट्रेटेजी यूजिंग research to identify target market। आपको क्या करना है, you have to do the extensive research to identify target market। आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले आपको कहाँ मिलने वाले हैं, it is necessary to identify this। you have to find out what exactly and how exactly the things will be coming up and how we have to identify. Target is the people who are potential buyers. It is necessary to find out who are our potential buyers. Address how you will sell to the target। सबसे पहला आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका टारगेट मार्केट कौन है। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ यू विल सेटिस्फाई टू दिस पीपल। इन लोगों को हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे, और आई कैन से हाउ यू विल टारगेट सच कस्टमर। ये कस्टमर को कैसे टारगेट करेंगे, कहाँ से टारगेट करेंगे, एंड हाउ वी विल डू द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। सो आराम से, जरा भी कहीं नहीं करना है, समझ के लो। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन, देन कम्स आइडिया स्क्रीनिंग, देन कम्स कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, देन कम्स मार्केट स्ट्रेटेजी। अब आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए जाना है, आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो चुका है, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तय कर दिया, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाना है, कैसे लाना है, सब कुछ आपका तैयार है। एवरीथिंग यू आर रेडी विथ। ओके, नाउ द टाइम हैज कम वेयर you have to find out, you have to check, you have to understand that ये जो मैं आइडिया कर रहा हूँ, ये जो मैं लेके आ रहा हूँ बिजनेस, वो फिजिबल है या नहीं। ध्यान से सुनना, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है वायबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये बिजनेस रन करना इज रियली वर्थ और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नुकसान कर बैठूंगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से शेयर मार्केट में मेरे शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, पीछे चला जाऊंगा। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबल का मतलब होता है कि रियली वे आई एबल टू डू इट फॉर इट और नॉट, whether am I able to go for it or not. So we have to understand that we have to check with the viability of the study, viability of the project. Otherwise it is very difficult to understand whether we are making a profit or we are going to make a loss. So this is what we have to understand and we have to follow. So after feasibility, in feasibility we have to understand, can you produce it? क्या हम ये जो बोला है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे? नंबर 2, कैन यू सेल इट? क्या वो जो प्रोडक्ट बोला है उसको आप बेच पाएंगे? पहला तो प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हमारे में कैपेसिटी है? नंबर 2, क्या हम बेच पाएंगे? क्या हम लोग बेच सकने वाले हैं? क्या हम कर सकते हैं और नहीं? ये भी हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। Then comes product design. Adding features to product that consumer wants। ध्यान से समझने की कोशिश करना। Adding features to the product
that consumer wants. Consumer को क्या चाहिए? Consumer को product कैसे चाहिए? You have to find out, you have to check it out, and accordingly you have to supply the goods to the consumer. You have to supply the goods to the consumer. Adding features to product that consumer wants. That is what a proper product design. Then comes very important thing. Then comes test marketing. ध्यान से सुनना. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे घर के अंदर कोई भी चीज हम बनाते हैं, नई चीज को ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद, क्रिएट बनाने के बाद, किसी को सर्व करने से पहले, किसी को भी सर्व करने से पहले थोड़ा सा उसको हम टेस्ट करते हैं, एक सिंपल टेस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि हमने जो क्रिएट किया है उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर डिफिकल्टी नहीं है, इसमें मेजर डिफिकल्टी नहीं है. सो दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इट एज अ टेस्ट मार्केटिंग. सो रिलीजिंग प्रोडक्ट टू स्मॉल सैंपल, कुछ लोगों को प्रोवाइड करना स्मॉल सैंपल टू, क्या करने के लिए? टेस्ट मार्केट टू गेन द फीडबैक. उससे क्या मिलेगा अपने को? फीडबैक मिलेगा. क्या मिलेगा? फीडबैक. टेस्ट करके हमें क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा. सो दिस इज नोन एज अ टेस्ट मार्केटिंग. देन कम्स द मार्केट एंट्री. अब समय आ चुका है. टेस्ट मार्केटिंग समझने के बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट को समझ लिया कि यस, ये प्रोडक्ट प्रॉपर है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोग खरीदने को तैयार है, मीन्स इसका टेस्ट, डिजाइन वगैरह एवरीथिंग इज अप्रूव्ड, everybody is happy, everything is proper, so you can enter into the market now. अब समय आ चुका है कि आप मार्केट में एंट्री करो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फैला दो. Let the people purchase the product without any confusion. Let the people come up with the better market response. So this is what the first stage only. हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को शुरू होने का पहला स्टेज है ये. इधर से अपने लाइफ शुरू होता है, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है और अभी मार्केट में एंट्री किया है. मार्केट में एंट्री करने के बाद लाइफ शुरू होता है. तो मैं फिर से बोलता हूँ, द फर्स्ट थिंग कम्स इज आइडिया जनरेशन अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के बारे में वी हैव टू क्रिएट एन आइडिया इन द माइंड, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी नीडेड इन द मार्केट. I hope you people are understanding. आप लोग समझ पा रहे हो. ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ तक आपको समझा रहेगा. तो say yes or no in the chat box so I can go ahead with the things. Okay, very good. Excellent. Yeah. So, dear students, we are studying product life cycle. In product life cycle, basically there are 4 stages. But before that 4 stages, the first thing comes is product development. Because जब तक प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में एंटर ही नहीं हो पाएगा. प्रोडक्ट का लाइफ कब शुरू होगा? मार्केट में प्रोडक्ट एंटर होता है, तब से प्रोडक्ट का लाइफ शुरू होता है. मार्केट में प्रोडक्ट एंटर हो गया, प्रोडक्ट का लाइफ शुरू हो गया. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, the first thing we understand is idea generation, screening the product, screening the idea I can say, then develop the concept, then market strategy to sell the product, feasibility study. Now what is feasibility study? Feasibility study is whether the product को हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, क्या हम इस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, क्या प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाएंगे, क्या प्रोडक्ट को बेच पाएंगे. ये 2 सवाल हमारे सामने हमेशा रहने वाले हैं. सो कैन यू प्रोड्यूस इट, कैन यू सेल इट? This is a 2 big question we have to answer. Then comes product design.
एडिंग फीचर्स टू द प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर को जो चाहिए वो सारे फीचर्स उस प्रोडक्ट में मिलते हैं, मिलने चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइन। देन मार्केट में उसको लॉन्च करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू द टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट करो, चेक करो whether this product is proper or not. Ask people कि ये प्रोडक्ट सही है या। कुछ लोगों का, सैंपल लोगों का टेस्ट करा लिया रहेगा तो आप लोगों को समझेगा कि या नाउ द प्रोडक्ट इज ओके, परफेक्ट एंड इट इज रेडी टू गो अहेड। सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट मार्केटिंग। देन कम्स फाइनली मार्केट एंट्री। अब समय आ चुका है, हमें मार्केट में एंट्री करना है। प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के लिए हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे शुरू होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। दैट इज व्हाट PLC। ओके, सो now we will move towards product life cycle. I already told you is every human being has a life, same every product too has a life। हर एक प्रोडक्ट का भी अलग अलग लाइफ का फेज होता है, अलग अलग स्टेज से वो निकलता है और आगे बढ़ता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल describes the stages a new product goes through from beginning to end। शुरुआत से लेके अंत तक प्रोडक्ट कौन से अलग अलग स्टेजेस से मूव होता है, प्रोडक्ट कौन से अलग अलग स्टेजेस से आगे बढ़ता है, उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। It is a tool used by marketing professional। ये कौन यूज करते हैं? जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट को समझने के लिए एंड प्लान द मार्केटिंग मिक्स। क्या प्लान करने के लिए? टू प्लान द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को प्रॉपर, मार्केटिंग मिक्स आर नथिंग बट प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस को अगर प्रॉपरली आपको डिजाइन करना है तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन अ प्रॉपर वे। Otherwise, there may be a chance that we will lose the market. So, product life cycle is a different phase through which the product is going through and making its own journey. Now, when we speak about the product life cycle, the product can be anything. Product can be any product whichever is required. But why it is called as a product life cycle? Why it is called a product life cycle? Why? Because step by step, introduction, growth, maturity, and decline. Ultimately, decline is nothing but the retirement of the product. You can see introduction, that is birth of the product. Growth, then comes maturity. Now product is matured. Maturity एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जो हाईएस्ट लेवल पे होते थे, मीन्स इससे आगे आप लोग नहीं बढ़ पाएंगे। That is the highest level where you are, where you will be. You cannot go above it. You cannot cross this limit. You have to be, वो कहते हैं कि अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे आप, you are enough mature to deal with the situation. अब इसके बाद एक ही समय आ सकता है you will product will get retirement। देखो जैसे कि यहाँ पे रिटायरमेंट का एक पिक्चर बताया है, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेज कौन सा है? देखो, ग्रो, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन। बर्थ ऑफ द प्रोडक्ट। अभी ये कौन सा कब आया स्टेज? पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने पूरा देखा, उसके अंदर देखा हमने कैसे आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग। दैट इज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। देन कम्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज जहाँ पे फिनिश होता है
वहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू होता है। आप देख सकते हैं पहला स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड स्टेज ग्रोथ स्टेज, यू आर गोइंग, थर्ड स्टेज मैच्योरिटी स्टेज। आप इधर देख सकते हैं, आप कब देखो कैसे जा रहे हैं, ग्रोइंग 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 ग्रोइंग, ऊपर 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 जा रहा है कि नहीं। अब पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में कैसा होता है, लोगों को पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, जानकारी नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, इतना अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए वो सोचते खरीदना नहीं खरीदना, खरीदना तो कितना खरीदना, एवरीथिंग दे थिंक्स। सो देयर इज अ स्लो ग्रोथ। Then in the growth stage you can see how the growth has increased. It's very much steeper, fast growing, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस आ गया है, क्लैरिटी हो गया है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे उसका रिस्पॉन्स है, उसका रिजल्ट कैसे है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो यू आर इनटू द ग्रोथ स्टेज, देन यू एंटर इनटू द मैच्योरिटी, हाईएस्ट लेवल पे देखो आप अपने करियर की, और रादर देन इन द प्रोडक्ट अपने बेस्ट पोजीशन पे कि जहाँ पे आगे मतलब उसके सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट करके रखा है। That is what the maturity stage. And the time will come, the day will come, you will retire or your product will decline. Your product will decline or stop, people stop purchasing the product. आप देख सकते हो सेल्स का तो कैसे बताया गया है, going up and the time will come, it will again come down, जहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। So this is what the basic about the product development stage. Now again one thing I would like to let you know is that जब आप लोग ये पोजीशन पे आ जाओ, रिटायरमेंट और डिक्लाइन पे आ जाओ, अभी ये पोजीशन ऐसी रहती है जब तुम्हारे सारे बिजनेस बंद होने वाले, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला नहीं है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे चांसेस है कि तेरे को प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉस शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुझे क्या करना पड़ेगा, ये सिचुएशन में तुझे इतना केयरफुल काम करना है कि एक प्रोडक्ट तेरा मार्केट से बंद हो रहा है, एक प्रोडक्ट तेरा मार्केट से बाहर जा रहा है, एक प्रोडक्ट तेरा मार्केट से रिटायर्ड हो रहा है, बट एट द सेम टाइम तेरा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होने को रेडी है। ये तेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि वो इज योर कॉम्पिटिटर, यू आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ योरसेल्फ। तेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, तेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तू खुद है। तो एक प्रोडक्ट तेरा मार्केट से अगर सपोज जा रहा है, फॉर एग्जांपल मारुति 800 अगर मार्केट से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, लो कर दिया, फिनिश कर दिया, सो यू मस्ट बी रेडी विद द मारुति अल्टो। मारुति अल्टो का समय खत्म होने गया है, यहाँ पे मारुति अल्टो रिटायरमेंट स्टेज में पहुंचा, निकलने स्टेज में पहुंचा, तो यू मस्ट बी रेडी विद द मारुति वैगनआर। वंस मारुति वैगनआर के अंदर तुम एंड में स्टेज में पहुंच गया, तो यू मस्ट बी रेडी विद द मारुति एसेंट। कहने का मतलब क्या है, आपको आपके प्रोडक्ट का इतना परफेक्ट ध्यान देना है, you have to be very perfect with the product, you have to be very perfect with the services, that once the product is out of the market, one product which is out of the market, your another product is ready to enter the market. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें समझ के लेना है। एक प्रोडक्ट अपना जब रिटायर्ड हो रहा है, तो आप लोग ऐसे चुप बैठ जाओगे तो पब्लिक आपको भूल जाएगी। आपका इतना मेहनत, आपका इतना ब्रांड नेम, आपका इतना पब्लिक के अंदर जो नाम हुआ है, वो फिनिश हो जाएगा। नाउ यू विल आउट ऑफ द मार्केट। वंस वापस से दूसरी बार एक प्रोडक्ट को लेके आके वापस से उतना नाम क्रिएट करना, वापस से उतना एक लेवल बनाना, वो तेरे लिए चैलेंजिंग है। शायद तो वो बना भी ना पाए, शायद तो वो कर भी ना पाए, शायद तेरे से हो भी ना पाए। तो ये जो फ्लो है, यानी कि जब एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी हो गया, डिक्लाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे जब तेरा ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन जब एक प्रोडक्ट का चल रहा है ना, तब दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज चालू हो जाना चाहिए। समझने की कोशिश करो, आइडिया बंद होने चाहिए नहीं। वंस यू स्टॉप थिंकिंग यू विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक बार तुमने सोचना बंद कर दिया, तेरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। यू विल नेवर एबल टू प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट until you are stop thinking about developing it. So जब तेरा एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, रिटायरमेंट चल रहा है, तब बैक ऑफ द माइंड दूसरे प्रोडक्ट का आइडिया डेवलपमेंट यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज तेरा चालू रहना चाहिए। अगर
तू यहाँ पे डिले करेगा तो तेरा ये प्रोडक्ट जब रिटायरमेंट में आ जाएगा तो उस समय पे तेरे पास दूसरा लॉन्च करने के लिए कुछ भी होगा नहीं, दूसरा लॉन्च करने में तेरे पास कोई प्रोडक्ट होगा नहीं। तो देयर इज अ चांस कि लोगों को तू सामने से ऑप्शन दे रहा है कि मेरी कंपनी छोड़ के चले जाओ, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छे खासे बने बनाए कस्टमर्स, मार्केट में ब्रांड नेम, मार्केट में रेपुटेशन है, सब कुछ खत्म करके तू जा रहा है और वो तुझे बहुत, तेरे कंपनी को बहुत महंगा पड़ सकता है, तो तुझे बहुत नुकसान करा सकता है। इसीलिए जब एक प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मेच्योरिटी हो रहा है और रिटायरमेंट के स्टेज तक वो पहुंच रहा है, उस समय पे तेरा बैक ऑफ द माइंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज चालू होना चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि जब तक ये रिटायर्ड होगा तब तक तेरा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए तो इतने सालों पर हीरो होंडा टू व्हीलर, जब हीरो होंडा साथ में थे, उन्होंने इतने सालों तक क्यों राज किया हमारे देश पे, क्योंकि उनके पास हीरो होंडा स्प्लेंडर अच्छा चल रही है। उसका रिटायरमेंट आने को गया, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बना दिया। वो रिटायरमेंट आने को गया, हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर। वो रिटायरमेंट आने को गया, हीरो होंडा स्प्लेंडर एनएक्सजी। वो रिटायरमेंट आने को गया, हीरो होंडा पेशन, पेशन प्लस, पेशन प्रो, फिर हीरो। तो इतने सारे, एक खत्म नहीं होता है, एक उसकी मार्केट लूज नहीं करता है कि दूसरा रेडी, एक अपना मार्केट खत्म नहीं होता है कि दूसरा रेडी। यानी कि सी हाउ द फ्लो इज, कैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, जरा समझने की कोशिश करो आप लोग। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस ग्रोज। सो इन शॉर्ट, अभी के पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पूरा देखा, और आने वाले लेक्चर में इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मिनट वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाकी के 4 स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, रिटायरमेंट। पहले का आज का लेसन 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज आ जाएगा और बाकी के 4 जो स्मॉल मोस्ट स्टेजेस है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। ज्वाइन इमीडिएटली विद इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स फास्ट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टॉप शेयरिंग हियर and tell others also to join who have not joined, because now attendance and examination is going to happen.